Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. This is chapter 7 of class 10th, the last chapter, but the most important chapter for your CDS ND एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें सारा ट्रांसपोर्टेशन के बारे इन्होंने बहुत अच्छे से दे रखे। पोर्ट सारे इन्होंने डिस्क्राइब किए। जो जो क्वेश्चन थे पोर्ट्स पे आज तक यूपीएससी ने पूछे आपके एनडीए में, सीडीएस में, सीएपीएफ में, तो वो सारे यहाँ पर दिए थे जी। इवन वाटरवेज के बारे प्रॉपरली दिया हुआ, एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड रेलवे जोन्स, नेशनल हाईवेज, वो सारा इसमें दिया हुआ है इस चैप्टर में। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो चैप्टर का नाम एक तरह का बताया यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के बारे। सो पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस. So efficient means of transport are the prerequisites for fast development. Three important domains of earth: land, water and air. Based on these, transport can also be classified into land, water and air transport. Right? तो अगर देखें, transport, communication and trade are complementary to each other. India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity and linguistic and cultural plurality. Railways, airways, waterways, newspapers, radio, television, cinema, internet have been contributing to its socio-economic progress in many ways. The trades from local to international levels have been added to the vitality of its economy. It has enriched our life and added substantiality to all growing amenities and facilities of the comforts of life. You will see how modern means of transport and communication serve to the lifelines of our nation and its modern economy. Thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade today. So trade and transport are restricted to a limited space, were limited. With the development in science and technology, the influence of trade and transport expanded far and wide. So अब जरा ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला देखेंगे जी रोडवेज, सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, 62.16 lakh kilometer. In India, roadways have preceded the railways. They have an edge over railways, obviously, in view of the ease with which they can be built. And otherwise also, construction cost is much lower. Road can traverse comparatively more dissected. बहुत सारे इलाकों में रोड ही जा सकती है, रेलवेज नहीं जा सकते. Roads can negotiate higher gradients of slope also. Road transport is economical in transportation of few persons. Right? It also provides door-to-door service, thus cost of loading unloading is much lower. उसके बाद अगर बात करें तो रोड्स को क्लासिफाई 6 क्लासेस में किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी. एंड सबसे पहले अगर बात करें गोल्डन क्वाड्रेटर, जिसको सुपर हाईवेज कहा गया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता आर कनेक्टेड विद 6 लेन हाईवेज. इनको कहा जाता है सुपर हाईवेज. और दूसरी तरफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसके बारे में देखिए, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में सिलचार टू पोरबंदर. सो दीज आर द 6 लेन्स हाईवे कनेक्टिंग थिंग. इसको भी मैप में भी दिखाऊंगा. उसके बाद नेशनल हाईवेज आते हैं जी. प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर मेंटेन्ड बाय CPWD. अ नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस, लाइक शेरशाह सूरी मार्ग इज नेशनल हाईवे नंबर 1, दिल्ली टू Amritsar. State highways which are connecting state capital with different headquarters, district headquarters. District roads connect the district headquarters with the other places of the district. Or rural roads which are like rural areas and villages को connect करेगा. और इनको स्पेशल इम्पेटस मिलता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. Every village in the country is linked to a major town in the country by an all-season motorable road. Then we have a border roads, which is maintained by BRO, Border Road Organization, which is basically under Ministry of Defense. Undertaking constructs and maintains roads in the bordering areas of the country. So development of the roads in strategic importance in the northern and northeastern areas, it has been constructing. इस मैप को ज़रूर अच्छे से देखें, जैसे कहाँ पर ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इंटरसेक्ट करते हैं, वो झांसी है जी. अगर हम इधर देखें, ये है पोरबंदर से सिलचार तक, यहाँ तक ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है. इसके ऊपर शहरों को देखने का प्रयास करें, राजधानियाँ देखने का कोशिश करें. यहाँ पर आपको ये ईटानगर मिल रहा है, नीचे इम्फाल है,
ये गुवाहाटी है जी। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाता कौन सी ऊंची कैपिटल है, कौन सी ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल है, ये भी देखना अच्छा रहेगा। कहाँ कहाँ पर गोल्डन क्वाड्रेंटल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इंटरसेक्ट करते, जैसे ये जो है स्ट्रेच यहाँ पर उदयपुर दोनों पे है। इसी प्रकार अगर आप नीचे देखें तो ये कुछ चीज़ें आपको देखना हेल्पफुल रहेगा पेपर के लिए, क्योंकि कई बार इस प्रकार के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेंगलुरु अगर आप देखें ये भी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रेंटल दोनों पे है जी। सो जस्ट हैव अ लुक ओवर these आर द important cities or the capitals which are mostly located on these. अगला, the world's longest highway tunnel, Atal Tunnel, which is 9.02 kilometer, has been built by BRO, connects Manali to Lahaul Spiti through the year, and the earlier the valley was cut off for about 6 months each year owing to heavy snowfall. और ये बेल्ट बनाई किस में है जी? पीर पंजाल रेंज में ऑफ हिमालयास। लेट्स नाउ फोकस ऑन द अनदर पार्ट। रोड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल आल्सो, मेटल्ड और अनमेटल्ड। मेटल जो सीमेंट, कंक्रीट या बिटुमेन ऑफ कोल से बनी है, लोक जिसको पंजाबी में कहते हैं। सो इन रिसेंट ईयर फास्ट डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क हैज टेकन प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट रेलवे, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड द पैसेंजर्स to conduct multifarious activities, business, sightseeing, pilgrimage, transportation of goods over the long distances. पहला largest railway public sector undertaking in the country, and the first was from Mumbai to Thane in 1853 for a distance of 34 किलोमीटर। यहाँ पर बताया गया कि रेलवेज भी लगाना बहुत आसान नहीं है। प्लेन्स में तो काफ़ी अच्छी डेंसिटी है रेलवेज की और काफ़ी ज़्यादा हैं, बट इफ़ वी गो टू द टेरेन्स लाइक हिमालयन, दैट इज़ नॉट वेरी फेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स। हाई रिलीफ होने के कारण, स्पार्स पॉपुलेशन होने के कारण देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, इवन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट कैन बी एन इशू। सेम वे राजस्थान में सैंडी प्लेन्स में भी लगाना मुश्किल था, फॉरेस्ट एरियाज में भी, इवन इन द ईस्टर्न। एक रिसेंटली development of Konkan railways from the west coast has facilitated the movement of passenger and goods in the most important economic region of India. Faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslides. Railways became more important in our national economy than all other means of transport put together. People stop the trains, pull the chain unnecessarily, that is the problem. Nothing to focus on this. Pipelines, पहले सिर्फ पानी ट्रांसपोर्ट होता, आज क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। ब्राउनी, मथुरा, पानीपत, गैस fertilizer plants could be thrown off only because of the pipelines. Initial cost of laying pipelines is high, but subsequent running costs are minimal. Three important networks of pipeline transportation. Number one is Assam to Kanpur. गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद तक पहुंचती है। बरौनी टू हल्दिया, फिर राजबंद टू मोरीगांव एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। इसी प्रकार फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, विरामग्राम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत टू कनेक्ट कोयाली, चक्षु एंड अदर। In the same way here, Hazira to Vijaypur, Jagdishpur, Mumbai High Basin and all. Now talking about the waterways, inland waterways के बारे और एक ports के बारे डिस्कस करेंगे। फ्यूल एफिशिएंट अगर देश के अंदर वाटरवेज चल रही हैं, इन वाटरवेज को अगर देखें तो इनलैंड वाटरवेज रिसेंटली 6 हो चुकी हैं। जैसे गंगा है, गंगा के ऊपर है इलाहाबाद से हल्दिया। नंबर 2 है सादिया टू धुबरी, ब्रह्मपुत्र के ऊपर। वेस्ट कोस्ट कैनाल में कोलम टू कोटापुरम है जी, दैट इज़ ऑन कैनाल्स, उद्योग मंडल कैनाल्स। ये 3 है जी। नंबर 4 है जी काकीनाडा टू पुडुचेरी, दैट इज़ नेशनल वाटरवे नंबर 4। और फिर है 5 जो कि ब्राह्मणी रिवर के ऊपर है, गोइंग खाली टू तालचेर।
तो इनको याद करने का, छठी भी याद रखिए, बराक रिवर के ऊपर लखीपुर टू बंगा, तो इसके लिए निमोनिक याद रखिए 14, 25, 36। सबसे बड़ी 1 है, सबसे छोटी 6 है जी, 1, 4, 2, 5, 3, 6। और इनको मैंने बहुत अच्छे से आपको याद भी करवाई। गंगा के ऊपर है 1, ब्रह्मपुत्रा दूसरे नंबर की है नदी, धुबरी टू सादिया। फिर के में 3 आते तो कोलम टू कोटापुरम केरला में कैनाल्स को जोड़ के। चौथी है इधर काकीनाडा पुडुचेरी गोदावरी कृष्णा कैनाल्स को जोड़ के। 5वीं है गोइंगखाली टू तालचेर ब्राह्मणी रिवर के ऊपर। 6th है हमारी लखीपुर टू बंगा ऑन बराक रिवर। तो ये 6 वाटरवेज बहुत अच्छे से याद है और लेंथ वाइज भी आपको याद हो चुकी है। कुछ और भी बनाने की सोच रहे हैं। मांडवी ज्वारी आपको पता है गोवा की नदियाँ, सुंदरबंस बराक एंड बैक वाटर्स ऑफ केरला, वहाँ पे बनाने का। अब अगर बात करें तो पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं एनडीए में, सीडीएस में। कोस्ट लाइन है इंडिया की 7516.6 किलोमीटर्स, 12 मेजर पोर्ट्स और 200 नॉन नोटिफाइड पोर्ट्स। इंडिया का मेजर 95% ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज हैंडल्ड बाय द पोर्ट्स। नंबर 1 इज कांडला, दैट इज इन कच्छ, यहाँ पर है जी कच्छ में। फर्स्ट मेजर पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस विच वॉज डेवलप्ड टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन मुंबई, क्योंकि जब ये चला गया कराची पोर्ट तो फिर इधर बनाना पड़ा, वो है ये। कांडला वॉज चाइल्ड ऑफ पार्टीशन कहा जाता है इसको, वॉज नोन एज द दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। इसको अब दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट नाम रखा गया, टाइडल पोर्ट है जी। कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट अक्रॉस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। उसके बाद आता है मुंबई, बिगेस्ट पोर्ट, द स्पेशियस नेचुरल एंड द वेल शेल्टर्ड हार्बर। देन इसी में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बाद में डेवलप किया गया टू डी कंजेस्ट द मुंबई। देन वी हैव इज मारमागांव, दैट इज इन गोवा। आयरन एक्सपोर्ट होता खूब सारा इस कंट्री, हमारे कंट्री से। गोवा में आयरन की माइनिंग भी है। 50% ऑफ इंडियाज आयरन एक्सपोर्ट इज हैपनिंग थ्रू दिस। एंड रिमेंबर इट्स एन एस्चुराइन पोर्ट। जो मारमागांव है ये एस्चुराइन पोर्ट है जी, जुआरी नदी के ऊपर है। न्यू मैंगलोर कर्नाटका में एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और कहाँ से, कुद्रेमुख माइंस हैं लोहे की, सारा एक्सपोर्ट यहाँ से किया। फिर नीचे कोची है, एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न एंड लगून की एंट्रेंस पे कोची। अगर आप देखो केरला के इस तरह लगून के एंट्रेंस पे कोची, नेचुरल हार्बर। अगर आप चेक करो तो 6 वेस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट्स हैं और 6 ही ईस्टर्न कोस्ट पर है। रादर इसमें अभी 12 मेजर पोर्ट्स एनसीईआरटी में, 13th मेजर पोर्ट भी घोषणा कर चुके हैं पोर्ट ब्लेयर। तो नीचे से अब कह रहे हैं टूटीकोरिन, साउथ ईस्टर्न पोर्ट, नेचुरल हार्बर है ये, और रिच हिंटरलैंड, फ्लरिशिंग ट्रेड, हैंडलिंग ऑफ वैरायटी ऑफ कार्गोस। इसके बाद ऊपर आता है चेन्नई, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री, रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। Then you have is Visakhapatnam, deepest landlocked and well protected port. That is in Andhra Pradesh. Then you have is Paradip, उड़ीसा में। एक्सपोर्ट करता आयरन और यहाँ से, ये याद रखें, विशाखापट्टनम लैंडलॉक्ड पोर्ट और डीपेस्ट भी। उसके बाद कोलकाता इनलैंड रिवराइन पोर्ट, it's a tidal port also, requires constant dredging of Hooghly. Haldia port was developed as a subsidiary port and in order to relieve the pressure from Kolkata. एयरवेज में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, एयरवेज वहाँ पर इंपॉर्टेंट है जहाँ पर बहुत सारा ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकता, ना रोड्स जा सकती ना रेलवेज जा सकती, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं ना कोई कुछ ना, तो वहाँ पर दी सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। Big river dissected relief and forest and all area, there you can have is air transport. अगला कम्युनिकेशन पे बात की गई है। विद द चेंज इन द मॉडर्न टाइम्स, इंटरनेट एंड ऑल थिंग्स आर चेंजिंग। इंडियन पोस्टल नेटवर्क सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है विच हैंडल्स पार्सल्स एंड द पर्सनल रिटन पार्ट्स। पर अब वो ज़माना ही ख़त्म होने जा रहा है, मेल्स का, न्यूज़पेपर का सारा। There are metro channel, grand channel, these channels have been there.
Digital India is an umbrella term to prepare for a knowledge-based transformation. Is to bring transformative to realize I plus IT gives Indian tomorrow and is making technology center to enabling this. तो ये सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है. न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, ये भी एक मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट है. So that was about this chapter. Very important, all of these questions, just try to answer these. So that was the today's session for the class 10th. Now we will have the class 11 sessions with you people on this NCERT part. ज़रूर इस लिंक को शेयर करिएगा नीव सीरीज़ को, so that maximum people can join us. Thank you. जय हिंद.